Hi, everybody. Trust your vibes. Trust your vibes. Energy doesn't lie. Energy doesn't lie. This is 21st of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, स्पीड इज नॉट नेसेसरी. स्पीड से भी ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में स्टडीज जा रही है, किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन जा रहा है, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है. स्टडी फुल थ्रॉटल. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स और ये है टेस्ट सीरीज. सी टेस्ट सीरीज में ऐसे सेक्शनल टेस्ट विद सॉल्यूशन एंड डिस्कशंस आई विल शेयर. द आइडिया इज कि हमें एनसीईआरटीज, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और जो पूरा सब्जेक्ट है हमारा, ये पूरा सब्जेक्ट हमें रिवाइज करना है विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज. सो अवर टारगेट इज बाय 28th ऑफ मई 2023 हम एटलीस्ट 10,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एटसेट्रा, हर सेक्शन ऑफ सिलेबस से, हर सेक्शन ऑफ दिस एंटायर सिलेबस से. ऑलराइट, सो आई विल शेयर दिस पीडीएफ एंड सॉल्यूशन टुडे. इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करना. आज लाइव क्लास नहीं होगा. ओके. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. ये vocabulary है. Benefaction का मतलब होता है a kind of donation or gift. Donation or gift. Charity, contribution और donation. Modicum है मतलब बहुत कम है. A small quantity of a particular thing, especially something considered desirable or valuable. Senile है, that is aged है. Having or showing the weakness or disease of old age. Verity मतलब सच्चाई, a true principle or belief, especially one of fundamental importance, सच्चाई. Incommunicado मतलब होता है संपर्क वर्जित, not able, wanting or allowed to communicate with other people. So ये vocab words हैं आज के लिए. Incommunicado, verity, senile, modicum or benefaction. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is quiz number 239. Answers. In which year did King George V assume the crown of India? The answer is 1911. थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था रेवतवारी सिस्टम. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में जो इंडियन जजेस है उनको डिनाई किया गया था ट्रायल ऑफ से यूरोपियन पीपल. What was the Woods Dispatch about? This was about education. पिंगाली वेंकैया जी ने डिजाइन किया था नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. आज के सवाल है, Who founded the Home Rule League in Calcutta in 1916 AD? Who was the viceroy at the time of Quit India movement? Where was the Vaikom Satyagraha started? Who created the Madras Presidency as it existed till Indian independence? Madras Presidency. High courts were established in Calcutta, Bombay and Madras in which year? In which year? So these are 5 questions for today. ये CSET है. These are 2 questions. ये first question है, age related question है, try to answer. और ये second question है, ये 3 statements है, try to find कि ये statement sufficient है, insufficient है to answer this question. Okay. So this is CSET. आज आंसर राइटिंग सेशन नहीं है, आज ऑफ है. रिवाइज एंड कंसोलिडेट, बट वी विल डिस्कस प्रीवियस सबमिशंस. ये है राश बिहारी बोस जी. राश बिहारी बोस जी, वी पे अवर ट्रिब्यूट टू द ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी. Born 1886, Rash Bihari Bose was an Indian revolutionary freedom fighter who was one of the key organizer of the Gadar Mutiny. Gadar Mutiny. His views and spirited speeches infused his fellow revolutionary with utmost patriotism. So we pay tribute to him on his death anniversary. Rash Bihari Bose. आप हैं वायकॉम मोहम्मद बशीर. हम आपको आज जान रहे हैं, आपकी बर्थ एनिवर्सरी है राइटर एंड फ्रीडम फाइटर के रूप में. रिमेंबरिंग द आइकॉनिक राइटर एंड फ्रीडम फाइटर. So remembering the literary legend Vaikom Muhammad Bashir ji, he is considered as one of the most influential personalities in modern Malayalam literature में. His works, which often dealt with themes of humanism, individual freedom, continue to guide us even today. तो आप हैं Vaikom Muhammad Bashir ji from Malayalam, Kerala. Then did you know में आज का सवाल है, the world's only floating post office is located in houseboat. तो आज का फैक्ट है, ये हाउस बोट है, डल लेक है श्रीनगर में. हाउस बोट शिकारा.
सवाल है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सरदार पटेल जी, बी आर अम्बेडकर साहब या महात्मा गांधी जी? ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर लाइफ, लाइफ इनिशिएटिव है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, गो ग्रीन, प्लांट मोर ट्रीज, कंज्यूम लोकली ग्रोन सीजनल वेजिटेबल्स, प्लांट ट्रीज ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ, जैसे बर्थ है, मैरिजेस हैं, बर्थडेज है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सो व्हाई नॉट वी गो एंड प्लांट ट्रीज? गिफ्ट इंडोर प्लांट्स ऑन वेरियस फेस्टिवल्स एंड ओकेशंस, सो हमें प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट करना है। आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हम देखेंगे। हम जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिस्टिक्स वाटरवे, फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स ओपन हुआ है। वी विल टॉक अबाउट कोलम कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट स्टेट बना है। कॉलर नेम प्रेजेंटेशन, ये जो नया आइडिया है, इसके मेरिट डिमेरिट, टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वोकैब हैं डिप्लोमेसी के, वी विल गेट टू लर्न। देन न्यूज़पेपर कवरेज में वी विल कवर इंपॉर्टेंट थीम्स। ओके, सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट जो हम फैक्ट बेस्ड न्यूज जानते हैं वो है इंडिया का पहला स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स आया है। पहला स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स बहुत जरूरी होता है। वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन, और ये कहाँ पर है? ये है अगरतला, त्रिपुरा में। तो इंडिया का पहला स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन लॉन्च हुआ है अगरतला, त्रिपुरा में। यूनियन मिनिस्टर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे आयुष, और यहां पर आपने इसको जॉइंटली इनॉग्रेट किया। सी, लॉजिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? किसी भी एक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, या फिर हमें कोई भी बिजनेस करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो इन सब के लिए लॉजिस्टिक्स रिक्वायर्ड होता है। लॉजिस्टिक्स जैसे सामान को ट्रांसपोर्ट कराना वाटरवेज के थ्रू, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास कनेक्टिविटी की डिफिकल्टी होती है। ये एक चिकन कॉरिडोर बोलते हैं, चिकन कॉरिडोर। तो द पॉइंट इज हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, सो वी आर ट्राइंग कि हमें यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाना है, और इसलिए हम जैसे कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। दिस इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन लॉजिस्टिक्स, सो दैट इज वाई दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन। तो to enable the rich pool of talent in the region to become world class experts in transportation and logistics sector, तो नॉर्थ ईस्ट में हम इस पे एम्फेसिस दे रहे हैं। ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के अंदर सेटअप हुआ है, और यहाँ स्टडी होगा, रिसर्च होगा, और लॉजिस्टिक्स, वाटरवेज और कम्युनिकेशन, इसको हम यहाँ पे एम्फेसाइज देंगे। ये पहला स्कूल है, फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स है, दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का पहला स्कूल है ऐसा अगरतला, त्रिपुरा में। कोलम, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट बना है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट। केरला में वैसे ही लिटरेसी बहुत अच्छी है। अब ये जो कोलम है, ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट मतलब यहाँ के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जागरूकता फैलाई गई, सिटीजन्स को अचीव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी। जैसे हम बोलते हैं ना कि लिटरेसी का मतलब है आपको लाइक पढ़ना आता है, बेसिक अरिथमेटिक आता है, लिखना आता है, तो यू आर लिटरेट। बट जैसे डिजिटल लिटरेसी एक आती है कि आपको डिजिटल वर्ल्ड का नॉलेज है या नहीं है, डिजिटल कैसे ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड डिजिटल लिटरेट और इलिटरेट। Similarly, if you have knowledge of constitution, so you will be called constitutional literate और illiterate। तो ऐसा यहाँ पे कैंपेन चलाया गया और लोगों को संविधान में दिए हुए अधिकार, संविधान में दिए हुए प्रोविजंस, इन सब के बारे में जानकारी दी गई। तो करीब 7 लाख फैमिलीज को एजुकेट किया बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड न्यूज, और इसको एज अ टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो। कॉलर नेम प्रेजेंटेशन अभी काफी न्यूज में है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि वी आर लाइक, अगर किसी का फोन आ रहा है तो स्पैम एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी होता है। स्पैम एनोनिमस कॉल्स आते हैं और इससे बहुत टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स भी होते हैं। सो वैसे तो ट्रू कॉलर जैसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनकी हेल्प के थ्रू से हम फाइंड आउट करते हैं कि ये नंबर किसको बिलोंग करता है, बट अगर ऐसा गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैंडेटरी मैकेनिज्म हो जाए तो इससे जो स्पैम कॉल्स हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो ये है दिस CNAP कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा, जो भी पर्सन आपको कॉल कर रहा है तो अलोंग विद दैट नंबर उस पर्सन का नेम भी रिफ्लेक्ट होगा। तो द बेसिक आइडिया इज आपके पास इन्फॉर्म चॉइस होगी कि ये नंबर से कौन कॉल कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम आप इससे बहुत सारे जो हैरेसमेंट्स या फिर स्पैम कॉल्स होते हैं इनसे भी आप बच सकते हैं। बट कंसर्न्स ये है कि इससे डेटा प्राइवेसी,
या फिर स्पेशली जैसे विमेन अगर नंबर इस तरीके से हो रहा है तो वल्नरेबिलिटी हो सकता है, या फिर इस पे जो नंबर्स अवेलेबिलिटी है विद द हेल्प ऑफ नेम, इससे प्रोफाइलिंग हो सकती है, प्रोफाइलिंग हो सकती है। सो देयर कुड बी सम डिफिकल्टीज, कंसर्न्स, इसको आयरन आउट करने की जरूरत पड़ेगी। बट ओवरऑल दिस CNAP, दिस कॉलर नेम प्रेजेंटेशन, इट्स अ गुड आइडिया, ये होना चाहिए, ताकि वैसे भी जो नंबर है, नंबर अगर हम कोई भी मोबाइल नंबर लेते हैं तो वी प्रेजेंट अवर आइडेंटिटी कार्ड। कॉलर नेटवर्क जो होता है मोबाइल प्रोवाइडर, उनके पास हमारा नेम, आइडेंटिटी, एवरीथिंग होता है। तो जस्ट अगर उसमें नेम आएगा, इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा कि जो फ्रॉड्स हैं, स्पैम है, ये बहुत हद तक कम होंगे। तो दिस कुड बी अ रियली गुड स्टेप, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। डिप्लोमेसी में पहले हम आगे बढ़े आज के न्यूज़पेपर में, तो कुछ सर्टेन कीवर्ड्स हैं डिप्लोमेसी के, उनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी इज अ पैट्रियोटिक आर्ट ऑफ लाइंग फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री, ऐसा भी एक बोला गया है। द पॉइंट इज, डिप्लोमेसी फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से दो कंट्रीज इंटरैक्ट कर रही है, या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज से इंटरैक्ट कर रही है, इंटरनेशनल अरीना में अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट कर रही है, अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड कर रही है, ये सब डिप्लोमेसी कहलाता है। तो डिप्लोमेसी में ऐसा बोला जाता है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए डिप्लोमेटिक टैक्ट होना बहुत जरूरी है। एक होती है पब्लिक डिप्लोमेसी। पब्लिक डिप्लोमेसी का मतलब आप पीपल टू पीपल रिलेशन बढ़ा रहे हो, इंफॉर्मेशन जो है पॉजिटिव इमेज बना रहे हो फॉरेन पब्लिक में, लॉन्ग टर्म रिलेशंस बना रहे हो। जैसे यूएसए में इंडिया का ऐसा इमेज है कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, और दिस टेक्नोलॉजी, इंग्लिश वोकैबुलरी में वी आर वेरी गुड। तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक सॉफ्ट पावर, पब्लिक डिप्लोमेसी। शटल डिप्लोमेसी, शटल डिप्लोमेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह ट्रैवल करते हैं, शटल करते हैं, दे ट्रैवल फ्रिक्वेंटली, मैसेजेस, डील्स विद प्रॉब्लम एटसेट्रा, दे ट्रैवल, समवन ट्रैवल्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्री, तो वो शटल डिप्लोमेसी होती है। जैसे पिछले कुछ टाइम से जयशंकर साहब ने एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है, स्पेशली कोविड-19 के बाद, तो काइंड ऑफ शटल डिप्लोमेसी। ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी होती है, जैसे श्रीलंका में डिफिकल्टी आया, अभी पाकिस्तान में भी बहुत डिफिकल्टी आ रहा है, नेपाल में भी हुआ, तो ह्यूमैनिटेरियन एड हम प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड, दिस इज अगेन वन काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी होती है, जैसे अभी COP27 में, और जो ग्लासगो समिट भी हुआ था, शर्म अल शेख समिट था, एनवायरनमेंट रिलेटेड हम अपने पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं। एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी में जैसे पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, ये आइलैंड नेशंस हैं, ये अपने व्यू पॉइंट्स आगे रखते हैं। कुछ टाइम पहले मालदीव्स एक कंट्री है जिसने अंडर वाटर पार्लियामेंट लगाया था वहां पे, तो वो भी एक काइंड ऑफ एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी। ओके, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा को हम हाईलाइट कर रहे हैं। समिट होता है, जैसे ग्लोबल अभी G20 समिट हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के पीपल इंडिया में आएंगे, टॉप 20 इकोनॉमीज, सो दिस इज समिट डिप्लोमेसी। इंटरमीडियरी डिप्लोमेसी होती है कि टू कंट्रीज आर फाइटिंग, थर्ड कंट्री वहां पे उधर एक मीडिएटर का काम कर रही है, फैसिलिटेटर का, तो वो इंटरमीडियरी। केबल टेलीफोन, टेलीफोन्स में टॉक्स हो रहा है, हेलो। फुटबॉल डिप्लोमेसी, पिंग बोंग डिप्लोमेसी, जैसे अभी कतार में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, इट वाज अगेन कतर अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो फॉरेन रिलेशंस है उसको इंप्रूव करने की कोशिश किया। पिंग पोंग जो था वो होता था टेबल टेनिस, चाइना और से अमेरिका के बीच में। ऑयल डिप्लोमेसी होती है, ऑयल को एज अ टूल यूज किया जाता है, ऑयल के थ्रू बिजनेस किया जाता है, अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाता है, दैट इज ऑयल डिप्लोमेसी। डॉलर होता है, यूएस डॉलर का हेजेमनी है, तो यूएस डॉलर से यूएस वर्ल्ड जो फॉरेन अफेयर्स है उसको अपने फेवर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, दैट इज डॉलर डिप्लोमेसी। डिजिटल डिप्लोमेसी में डिजिटल वर्ड आ जाता है, और एक वर्ड गन बोट डिप्लोमेसी भी होता है, इसमें थ्रेटन किया जाता है नेवल फोर्सेस से, या फिर बाय द फोर्स, गन बोट डिप्लोमेसी बोलते हैं। जैसे इंडिया का 1971 जो इंडिया ने एक्सरसाइज किया था बांग्लादेश लिबरेशन के लिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने अपनी वॉरशिप्स भेज दिया था यहाँ पे, काइंड ऑफ लाइक गन बोट डिप्लोमेसी। सो दीज आर डिफरेंट वर्ड्स, डिप्लोमेसी में डिफरेंट वर्ड्स, डिप्लोमेसी में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दीज आर डिफरेंट वर्ड्स। अब से न्यूज़पेपर में आई विल ट्राई कि 5-7 मिनट्स स्टार्टिंग में कुछ एडिशनल ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, गिव मी फीडबैक, इज इट गुड और नॉट, ओके। नाउ लेट अस कम टू अवर न्यूज़पेपर, दिस इज द हिंदू। द हिंदू का फर्स्ट न्यूज है, दिस इज पोस्टर रो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मेकर्स हिट अ हर्डल,
गूगल, दिस इज अगेन लाइक स्कैरी न्यूज, 12,000 स्टाफ ले ऑफ किया है दिस गूगल में। टेक कंपनीज में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। गंगा का इरोजन हो रहा है, बैंक्स का, और बहुत सारे लोग होमलेस हो गए हैं वेस्ट बंगाल में। जो फर्स्ट न्यूज है, जो डिप्लोमेसी अभी हमने देखा, वी डिड नॉट वेट, डिड व्हाट वाज राइट टू हेल्प श्रीलंका, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये जयशंकर साहब ने बताया। श्रीलंका को जरूरत थी, हमने वेट नहीं किया, इमीडिएटली हमने वहां पे हेल्प डिस्पैच किया। This is a reassertion of our policy of neighborhood first. We are always the first responder. First responder जब भी डिफिकल्टी आती है, सबसे पहले हम खड़े होते हैं नेबर्स के साथ। He say after India's support for the island nation debt restructuring program. तो EAM है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे साहब इन कोलंबो। So India did not wait for other bilateral creditors. What is right? जो जरूरी था वो हमने यहाँ पे किया। We felt strongly that Sri Lanka's creditors must take proactive step to facilitate its recovery. श्रीलंका में this crisis आया था, पैसे खत्म हो गए थे श्रीलंका के पास, और इवन इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल चीजें के लिए भी पैसे नहीं थे। सो हमने मेडिसिन भी दिया, ऑयल भी सप्लाई किया, एसेंशियल गुड्स भी दिया। एट द सेम टाइम क्रेडिट लाइन के थ्रू भी हमने यहाँ पे फंड्स प्रोवाइड किए। हमने IMF से भी अपील किया कि श्रीलंका को बेल आउट होना चाहिए। ओके, तो IMF बिकमिंग द फर्स्ट बायलैटरल क्रेडिटर ऑफ द आइलैंड नेशन, और इंडिया ने इस तरीके से अच्छे से श्रीलंका का यहाँ पर हेल्प किया। ओके, तो IMF प्रोविजनल 2.9 बिलियन का पैकेज है। ये तभी क्लियर हुआ श्रीलंका का ऑफिशियल क्रेडिटर चाइना, जापान, इंडिया सब ने एक फाइनेंसिंग अश्योरेंस जब दिया। सो वी डिड द राइट थिंग। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इज अवर फॉरेन पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। यह बात है, चार्ज शीट्स नीड नॉट बी पुट इन पब्लिक डोमेन। सी, एक क्रिमिनल है, क्राइम हुआ, उसको अरेस्ट किया, अब उसके अगेंस्ट जो क्राइम हुआ उसको बढ़िया से चार्ज शीट बनाकर फाइल करना पड़ता है, सो दैट उसके आगे फिर केस चलेगा और उसको कॉन्विक्ट बताया जाएगा। अब द पॉइंट इज, ये चार्ज शीट क्या पब्लिक डोमेन में अपलोड कर दें गवर्नमेंट वेबसाइट में? विल इट गो लाइक प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है? इससे क्या जो केस है उसकी उसमें कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा? या फिर देयर हैज टू बी दिस ट्रांसपेरेंसी चार्ज शीट में? इस पे अभी डिबेट चल रहा है। AI फाइन 30 लाख, दिस जो अभी एयर इंडिया में ये इशू हुआ था, तो 30 लाख का यहाँ पे फाइन है। एंड दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये है ट्रेड विंड। सी, यहाँ रेगुलर टॉक्स है, ट्रेड में डिफिकल्टी आ रही है, बिकॉज इंडिया के ट्रेड एक्सपोर्ट कहाँ होता है? इंडिया का ट्रेड एक्सपोर्ट होता है यूएस में, यूरोप में। यूएस यूरोप दोनों रेसेशनरी टेंडेंसी दिखा रहे हैं, तो डिमांड नहीं है वहाँ पे, डिमांड नहीं है। तो वी आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स, बट अगर हम उसको बेच नहीं पाएंगे तो उससे हमें भी डिफिकल्टी आएगी। तो हमारा ट्रेड इंपैक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल ट्रेड विंड्स। द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ फॉल्टरिंग वेस्टर्न इकोनॉमीज आर येट टू हिट इंडियन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट्स में भी डिफिकल्टी आने वाली है। 34.5 बिलियन का शिप हुआ था, ये लेस है 12% फॉल हुआ है एक्सपोर्ट। तो शिपमेंट एक्सपोर्ट हुआ, वो ये एक रीजन है। एक तो वैसे ही कोविड-19 आया, फिर यूक्रेन क्राइसिस हो गया, और फिर अब रेसेशनरी टेंडेंसीज आ रही है। तो यूरोप और यूएस में डिमांड नहीं है, और इससे डिफिकल्टी आ रही है। प्लस पहले जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म था, चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रहा था, तो वो भी अभी फेवर में इंडिया के नहीं है, तो दैट इज वाई ट्रेड डिक्लाइन हुआ है। वर्ल्ड का ट्रेड डायनामिक्स हैव बीन ऑल्टर्ड सिंस देन। मोमेंटम स्वंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पोस्ट पैंडेमिक पेंट अप डिमांड से वापस फ्लैटनिंग होने लग गया है। इन्फ्लेशन हो रहा है, जियोपॉलिटिकल मडलिंग, यूक्रेन रशिया क्राइसिस भी इसका एक कॉज है। पेंट अप डिमांड क्या होता है? बहुत टाइम से आपने परचेज होल्ड करके रखा हुआ है और आप वेट कर रहे हो इस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे ही कोविड ठीक होगा हम फिर से सारी परचेज करेंगे। तो उसमें एक पीक आता है, वो एक पीक आया पोस्ट कोविड-19 नॉर्मलसी, बट वो पेंट अप डिमांड फिर से नॉर्मलाइज हो गई। तो दिस इज डिफिकल्ट टाइम। एक्सपोर्ट नंबर्स कम है, फेस्टिवल अभी जो हॉलीडे सीजन भी था, क्रिसमस, न्यू ईयर एटसेट्रा। लेट अस सी अभी बहुत अर्ली है, आगे क्या टेंडेंसीज होगी, बिकॉज इकोनॉमीज अभी भी क्रॉस रोड्स पे है। फुल रिकवरी इकोनॉमी का हुआ नहीं है। यूक्रेन क्राइसिस इज स्टिल नॉट ओवर, ताइवान क्राइसिस भी हो सकता है। चाइना में कोविड-19 का भी फिर एक वेव आया। चाइना अभी धीरे धीरे ओपन भी हो रहा है, बट चाइना के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है, एजिंग पॉपुलेशन, और ओवरऑल चाइना में पॉलिटिकल भी डिफिकल्टीज हैं। तो लेट अस सी इन सब का ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट होगा। सो macro and swifter micro policy actions are warranted to keep the export engine chugging. Export is important because export करते हैं तो डॉलर पैसा आता है, और इससे हम एसेंशियल इंपोर्ट वाली चीजों को बुलाते हैं।
सो वी शुड फोकस ऑन एक्सपोर्ट, वी शुड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। एजिंग फैक्ट्री है, यहाँ चाइना की पॉलिसीज का पर्टिकुलरली बताया है कि ये कैसे बैकफायर किया है। चाइना की पॉलिसी थी कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बट अकॉर्डिंगली रिसोर्स बढ़ेंगे नहीं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है। अब बिकॉज चाइना जिस तरीके से डिजाइंड है यहाँ का कंट्री, यहाँ पे स्टेट के द्वारा फोर्सफुली लोगों की पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की गई, जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी। शुरुआत में इसमें ये था कि पॉपुलेशन हमें कंट्रोल करना है बिकॉज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है टू फीड सो मेनी पीपल। माओ जेडोंग के टाइम से ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन हुआ, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने की बात किया। बट अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तेजी से डिक्लाइन हो रही है। यहाँ जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1 वो भी अचीव नहीं हो पा रहा। तो ये 2016 आते आते चाइना को रियलाइज हो गया कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है। सो वी नीड न्यू जो वर्किंग एज पॉपुलेशन भी चाहिए। तो दैट इज वाई फिर वो वन चाइल्ड पॉलिसी को टू चाइल्ड किया और ये पॉलिसी को चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया। बट डैमेज हो गया है, डैमेज इन द सेंस चाइना आज की डेट में जो डेमोग्राफी है वो एजिंग है। 1659 जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है इसमें लोग कम है, वेजेस बढ़ रही है, लेबर इंटेंसिव जॉब्स नहीं हो पा रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया जैसे वियतनाम वगैरह शिफ्ट हो रहे हैं और इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है। तो जैसे जापान में भी हमने देखा था पॉपुलेशन श्रिंक हुआ, ऑल्दो जापान की पॉपुलेशन अब फिर से बढ़ने लग गई है। जापान का जो ग्रोथ दिस बर्थ और जो पॉपुलेशन है ये अब ऑन द राइज है। बट द पॉइंट इज जैसे जापान में पॉपुलेशन एजिंग से डिफिकल्टी आया, सेम चीजें अभी चाइना में भी आ रही है। तो लेट अस सी, फर्टिलिटी रेट यहाँ पे 1.28 है और रिप्लेसमेंट होती है 2.1। तो फॉर टाइम बिंग चाइना की पॉपुलेशन कम होगा। लेट अस सी अब यहाँ पे किस तरीके से आगे ये कैरी फॉरवर्ड होता है। सेम इज गोइंग टू हैपन विद इंडिया एज वेल, ऑल्दो इंडिया में इतना स्ट्रिक्टली पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल किया जाता है बाय द स्टेट, बट इंडिया का पॉपुलेशन भी आफ्टर सम टाइम पीक होने वाला है और इसके बाद ये डिक्लाइन होगा और फिर एक नेचुरल लेवल ये अचीव करेगा ये। तो इट इज एक्सपेक्टेड, वन थ्योरी एक आया था अभी कि अभी जैसे 1.4 क्रॉस हो गया है, वी आर नाउ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉपुलस, सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। ये पीक होगा से अराउंड 1.7 1.8 बिलियन तक जाएगा। देन बाय द एंड जैसे अभी 2023 है, बाय द 2100 आते आते ये 1 बिलियन से भी कम हो जाएगा, प्रोबेबली 1 बिलियन से भी कम हो जाएगा, हमारी पॉपुलेशन श्रिंक होगी। देयर इज हार्डली एनी ऑटोनॉमी एट द पंचायत लेवल। इसमें बहुत रेगुलर टॉक्स है। रेगुलर टॉक्स ये है कि पंचायती राज सिस्टम आया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने में बहुत डिफिकल्टी हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 40 पहले से ही था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी होना चाहिए, बट इसको संविधान में पूरा हक दिलाने का, एक स्टैंडर्डाइज करने का सारे राज्यों में बहुत टाइम लगा। 73rd अमेंडमेंट, 73rd 74th में ये ग्राउंड लेवल पे डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। बट स्टिल अभी भी से 20-25 ईयर्स प्लस हो गया है, बट पंचायती राज ने डिलीवर नहीं किया। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये होता है, इनके पास फंड्स नहीं होते, इनके पास एक्चुअल पावर नहीं होता, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, प्लस डिवोल्यूशन ऑफ फंड नहीं है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे कई बार बहुत बड़ा एक हैम्पर करती है डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा में। पंचायती राज ये था ग्राम सभा मतलब एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ दैट गांव इज पार्ट ऑफ दैट ग्राम सभा। तो डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग डायरेक्ट डेमोक्रेसी टाइप यहाँ पे होना चाहिए, वो चीज अभी भी मिसिंग है। पंचायती लेवल को हमें दिस रीइन्वोगरेट करने की जरूरत है। G20 प्रेसिडेंसी टू एम्पलीफाई साउथ एशियाज वॉइस, इसमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, फॉर्डर पॉइंट्स हैं। G20 और इंडिया की एक्सपेक्टेशंस, कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन इज फूड, एनर्जी, फाइनेंशियल क्राइसिस। देन ये इंडिया का थीम होगा। प्रायोरिटीज क्या होगा, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव रिजिलियंट ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारा फेवरेट एरिया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, विमेन लेड डेवलप। वेरी गुड पॉइंट्स, इस पूरे इन सारे को नोट करना। वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये सारे कीवर्ड्स आप नोट करो, ये सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। मैं इसका अलग से नोट्स पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। सी प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स हैं G20 इज अ बेटर ग्रुप ऑब्वियसली बजाय G7 के, बिकॉज G20 में आज की डेट की टॉप 20 इकोनॉमीज है। तो ये एक बेटर वे बता सकता है, बिकॉज इन दी एंड जियोपॉलिटिक्स रिलाई करती है इकोनॉमी पे। ग्लोबल फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अब इससे क्या हो रहा है,
कि लाइक इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, यूक्रेन वॉर है, क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस हैं, रेसेशनरी टेंडेंसीज हैं, ये एक फिशर्स होने वाले हैं कि जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं सो कॉल्ड, वो यहाँ कैसे इसमें कंसेंसस बना पाएंगे। इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है, डेट का बर्डन बढ़ रहा है, साउथ एशियन इकोनॉमीज में भी दिस अंडर स्ट्रेस है। सो द पॉइंट इज दिस इज सेंचुरी ऑफ एशिया और इंडिया की प्रेसिडेंसी भी है। इंडिया को स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टैंड लेना और जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है उसको आगे बढ़ाना जरूरी है। तो साउथ एशिया लार्जेस्ट कंट्री है विद लार्जेस्ट इकोनॉमी, सिग्निफिकेंट ग्लोबल क्लाउड। इंडिया इज पॉइज्ड टू प्रेजेंट द सब कॉन्टिनेंट एट दीज इंटरनेशनल फोरा, जैसे G20 की इमर्जिंग इकोनॉमीज, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, बैक टू बैक प्रेसिडेंसी है इनके पास। G20 ट्रॉयका, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो देयर। तो इंडिया को जरूरी है कि साउथ एशियन कंट्रीज, ग्लोबल साउथ की जो प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट करे। डेवलपिंग वर्ल्ड ग्रेटर मोमेंटम है, इसको बेटर रिप्रेजेंट करे। जो चैलेंजेस हैं आफ्टर कोविड-19 और दिस वॉर, इन्फ्लेशन और इंक्रीमेंट दिस वेदर रिलेटेड चेंजेस, इसको हाईलाइट करे। एनर्जी, हेल्थ और फाइनेंस हमारा प्राइमरली क्राइटेरिया होना चाहिए, एनर्जी, हेल्थ और फाइनेंस। अब इसके अलावा हमें आगे का रास्ता भी सजेस्ट करना है बिकॉज वी आर द प्रेसिडेंट। तो ऑल आइज आर ऑन इंडियाज G20 लीडरशिप टू प्रोवाइड अ रोड मैप टू टेकल सम ऑफ द मेजर चैलेंजेस बिफोर द सबकॉन्टिनेंट एट अ टाइम व्हेन मल्टीलेटरलिज्म इटसेल्फ इज एक्सपीरियंसिंग अ क्राइसिस ऑफ रेलेवेंस। आज का जो वर्ड है मल्टीलेटरलिज्म, वर्ड में चेंजेस आ रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा चर्न चल रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एटसेट्रा में। तो इंडिया यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक गाइडिंग पाथ यहाँ पे दिखा सकता है और जो इंडियन वैल्यू सिस्टम है उससे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब देखो ये भी बहुत अच्छा लैंग्वेज है यहाँ पे। पावर एंड इन्फ्लुएंस इन डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, स्टैंडर्ड्स टेम्पलेट सेट करो ट्रेड, फाइनेंस में, ग्लोबल गवर्नेंस पे। और इसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं अक्सर जो साउथ एशिया पीछे छूट जाता है उसको एड्रेस करो। डेवलपमेंट, ट्रेड, क्लाइमेट एक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं इनके राइट्स को आगे बढ़ाओ। तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एम्प्लीफाई साउथ एशियाज वॉइस। ये ग्राउंड जीरो है। अब देखो अभी ज्योग्राफी में हमने कितने अच्छे से पढ़ा था कि इस तरीके से इरोजन होता है, तटीय इरोजन हो रहा है। इरोजन मतलब मिट्टी को हटाना, डिपोजिशन मतलब वो जो मिट्टी हटाई है वो कहीं और जाके डिपॉजिट करना। तो इरोजन, डिपोजन ये रिवर्स के थ्रू भी होता है, फ्लूवियल हो सकता है, अलग अलग एजेंट्स ऑफ इरोजन हो सकते हैं और इससे अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ये सब जियोमॉर्फोलॉजी है, 1 या 2 दिन में हम जियोमॉर्फोलॉजी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज इरोजन। अब ऑन द शिफ्टिंग बैंक्स ऑफ गंगा में ये डिफिकल्टी हो रहा है कि बहुत सारा तो लाइक हमारा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है वो एक रीजन है, प्लस रिवर्स जो हो रही है इसमें रिवर्स का पाथ चेंज हो जाता है और प्लस क्लाइमेटिक प्रेशर होता है, इसमें एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर होता है। तो ये इरोजनरी टेंडेंसीज जो हैं इससे लाइफ लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो इरोजन अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर हैज लेफ्ट दीज मेनी पीपल और मालदा डिस्ट्रिक्ट में चेंजिंग टोपोग्राफी चेंजेस ये सारे हो रहे हैं। ओके, तो द पॉइंट इज ये एक जो है जो प्लेन है गंगा का प्लेन है, जैसे मालदा फॉल्ट भी है। ये जो मालदा फॉल्ट है ना, दिस इज मालदा मतलब जो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है, मेघालय वगैरह, इट इज पार्ट ऑफ डेक्कन। बट ऐसा लगता है कि वो डिटैच्ड है बिकॉज यहाँ पे एक फॉल्ट है और वो फॉल्ट में गाद जम गई है, मिट्टी जम गई है, दैट इज मालदा फॉल्ट। सो द पॉइंट इज यहाँ इरोजनरी टेंडेंसीज के कारण सच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आ रहा है। ये सब क्लाइमेट डिजास्टर में काउंट होगा। Then India Egypt to hold dialogue on defense ties during Mr. Sisi, Abdel Fattah al-Sisi साहब इंडिया आएंगे। इजिप्ट दिस प्रेसिडेंट, लेट अस सी, इजिप्ट इंपॉर्टेंट है अब। देन नई टीबी की वैक्सीनेशन हमें फाइंड करना है। सुप्रीम कोर्ट, बिग टेक एग्रीगेटर मस्ट स्प्लिट रेवेन्यू फेयरली विद न्यूज क्रिएटर्स, ये INB ऐसा एक लॉ लाने वाला है। सोशल मीडिया में भी जो प्रमोशंस हैं इसको रेगुलेट करने की बात है। गवर्नमेंट पॉलिसी मॉडल स्टॉलिंग प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस विल मीट डिस्कस इन्फ्लुएंस विल्डेड बाय चाइनीज कमर्शियल फर्म्स। मैक्रो अपसी, दिस इज अगेन वन थिंग। अभी जर्मनी ने डिफेंस बजट बढ़ाया, अभी फ्रांस डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। सी स्पेंडिंग बाय अ थर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर्स। मैक्रो प्लान टू इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग बाय अ थर्ड फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। तो सी किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ये जो जर्मनी है और जो फ्रांस है ये यूरोप की 2 बड़ी पावर है, मेनलैंड यूरोप की। और जो यूके होता है ये एक पॉलिसी ऑफ लाइक स्प्लेंडेड आइसोलेशन इसने एंजॉय किया था बिकॉज दिस इज आइलैंड।
ये डायरेक्ट मेनलैंड यूरोप में नहीं आता। तो यूरोप में एक फ्रांस होता है, एक जर्मनी होता है जो ट्रेडिशनली हैवी वेट्स होता है, और एक यूके होता है, ये अपना लाइक मैरीन रहता है, ये समुद्र इसमें ज्यादा फोकस करता है, थोड़ा आइसोलेटेड होता है। तो फ्रांस जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2, फ्रांस जर्मनी एंड देन यूके। सो अगेन कॉन्टेक्स्ट। सो द पॉइंट इज दिस इज देयर, बट अब जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है जैसे रशिया के साथ डिफिकल्टी है, और प्लस आज का जो यूरोप है वो अमेरिका ने जैसा डिजाइन किया है वो वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिकन नेटो अलायंसेज एक्सेट्रा। पाकिस्तान रशिया से म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट ऑयल खरीदेगा, तिब्बत में अवलांच है। मिस्टर शी जिनपिंग स्पीक्स टू ट्रूप्स अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर, जर्मन टैंक्स अब जैसे यूक्रेन में नहीं हेल्प करेंगे, क्रेमलिन ने बोला। तो सी डायरेक्शन। नो डिसीजन येट ऑन सेंडिंग जर्मन मेड टैंक्स टू कीव, बर्लिन ने यहाँ पर ऐसा बताया। जर्मनी भी स्पेंडिंग बढ़ा रहा है। लीमा पेरू में क्लैश हो रहा है। सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज नहीं करेगा रिलेशंस विद इजराइल, बट काफी हद तक नॉर्मलाइजेशन हो गया है। पाकिस्तान डेट रिडन है, रेडी टू मीट ऑल द IMF डिमांड्स। दिस इज हुंडई। गूगल दिस 12,000 जॉब्स हुआ है, 6% ऑफ इट्स वर्क फोर्स को यहाँ पे एक्स किया। टेक सेक्टर ले ऑफ माउंट। फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। विप्रो, इंश्योरेंस सेक्टर, इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बन यूथ फाइंड फ्यूअर जॉब्स, हायरिंग स्लोज इन एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर। और रीजन क्या है? डिमांड, एक्सपोर्ट सेक्टर में स्लो डाउन आ रहा है। ओके, so this is the Hindu newspaper. This is the Hindu newspaper. Now let us see your answers. See, plate tectonic theory और किन्हीं 5 सोशल रिफॉर्मर्स पे एक छोटा सा नोट बनाना था। दिस इज वेरी इजी एक्सरसाइज। प्लेट टेक्टोनिक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है। द पॉइंट इज उसको लिखना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है यूपीएससी प्रिपरेशन इज वेरी इजी। The difficult part is to have consistency. The difficult part is to do simple work every day, means everyday basis पे। ये actually में results लाता है। फैंसी चीजें रिजल्ट नहीं लाती है। सी आई एम टॉकिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स, आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर सो ब्राइट, सो इंटेलिजेंट, सो सच अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड एटसेट्रा, बट वो क्या होते हैं, वो 4 दिन पढ़ते हैं, फिर 4 महीने गायब हो जाते हैं, फिर 4 दिन आएंगे, फिर 4 महीने गए। ऐसे नहीं, आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, सर्टेन कंसिस्टेंसी। और अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ोगे, डेली इंप्रूव करोगे, आप देखना जो हार्डवर्क है वो ऑलवेज बीट द टैलेंट। हार्डवर्क हमेशा टैलेंट को बीट करता है। आई हैव सीन दिस। ओके, सो हमें कंसिस्टेंटली मेहनत करना चाहिए। दिस इज अ शॉर्ट वे टू गेट सिलेक्शन। ओके, जैसे धवल ने देखो कितना बढ़िया यहाँ पे आंसर लिखा। धवल ने बहुत अच्छा आंसर लिखा, सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट। सी, टेक्टोनिक्स बनाना था। अब देखो एक्चुअली में लिखना पड़ेगा। इट डजेंट मैटर आपने कितने फैंसी वीडियोस देखे, कितनी फैंसी किताबें पढ़ ली, कितनी फैंसी कोचिंग कर ली, आप जो पेपर में लिखोगे बस वही आपका सत्य है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आपको लिखना बहुत जरूरी है। प्लेट टेक्टोनिक, सी कितना अच्छे से बताया टेक्टोनिक क्या होता है, मेजर माइनर प्लेट क्या होती है, डायग्राम भी बता दिया, इंडियन प्लेट भी बताया। अब इसको थोड़ा और इलैबोरेट करो, और सारे पॉइंट्स लिखो यहाँ पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राजा राम मोहन रॉय जी, भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा राव फूले जी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। फैंटास्टिक। सौरभ, दिस इज गुड। राम मोहन रॉय जी के बारे में बताया, फिर बंगाल मूवमेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। यस, वेरी गुड। ये एरो लगाने के बजाय ना नंबर लिखो, 1 2 3 या ABCD, से कॉपी बड़ी ऑर्गेनाइज लगेगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से स्टार्ट किया, फिर प्लेट बाउंड। देखो कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन है। मैप सो ऑसम, दिस इज सच अ ऑसम डायग्राम, वेरी गुड। फिर इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स बताए, डिफरेंट फॉर्मेशन। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉपी, वंडरफुल। कामिल, दिस इज गुड। कामिल ने भी स्टार्ट किया, डेफिनेशन बताया क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से स्टार्ट किया। देन आर्थर होम, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी ब्यूटीफुल डायग्राम। मेजर माइनर प्लेट्स, मूवमेंट कैसा हो रहा है, सी डायग्राम्स, वेरी गुड, वेरी नीट एंड क्लीन, गुड। ऐसा नहीं करना है, जब कभी गलत हो रहा है तो एक लाइन से लिख दो, अलग से उसे हाईलाइट नहीं करो। दीपाली, दिस इज गुड। प्लेट टेक्टोनिक, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक हमने बता दिया, मैकेंजी एंड पार्कर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स, फिर डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, वेरी गुड। देन सारे इसके पॉइंटर्स, एग्जाम्पल्स भी लिखे। हर बाउंड्री का एक एग्जाम्पल रेडी होना चाहिए, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कॉन्टिनेंट ओशियन, प्रिपेयर, रेडी रहना है हमें एग्जाम्पल से। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, प्लेट टेक्टोनिक, फैंटास्टिक। नेहा, दिस इज अगेन रियली गुड। सी, बहुत अच्छे से लिखा है, प्लेट टेक्टोनिक, मेजर प्लेट्स, नंबर लिखो 1 2 3 4, ये डायग्राम बॉक्स के अंदर बनाना है, वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, वंडरफुल। मूवमेंट्स, बाउंड्रीज, वेरी गुड। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होते हैं। नंदिनी, दिस इज रियली गुड।
सी प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, वेरी गुड, देखो कितना अच्छा है, 1 2 3, वेरी नाइस। माइनर मेजर प्लेट्स, डाइवर्ज, सी दिस डायग्राम, इंडिया को भी बताया कैसे हमने हिट किया दिस, हम सदर्न से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, फैंटास्टिक, वेरी गुड कॉपी। देन सोशल रिफॉर्मर्स क्या होता है, सी द स्टाइल, व्हाट इज सोशल रिफॉर्मर, डिफाइन द वर्ड। देन आपने ये 5 नाम बता दिए, भीमराव अंबेडकर साहब, विवेकानंद जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, दयानंद सरस्वती जी और राजा राम मोहन रॉय जी, वेरी गुड, ये सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये जो टेम्पलेट है ना, दिस इज लाइक वेरी वेरी यूटिलिटेरियन टेम्पलेट, वेरी गुड। राज, दिस इज गुड, सी प्लेट्स के बारे में लिखा, मेजर माइनर प्लेट्स होती है, ओशियन ट्रेंचेस होते हैं, गुड मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, वेयर इज द डायग्राम, डायग्राम हमेशा शुरू में बनाओ, डायग्राम जो होता है ना स्टार्टिंग में ही, बेस्ट चीज स्टार्टिंग में दिखानी चाहिए, डायग्राम हमेशा शुरू में आना चाहिए, ओके वेरी गुड। पूरी प्लेट का एक वर्ड मैप भी बना डालो। सोशल रिफॉर्मर में नाम बताया आपने, राजा राममोहन रॉय जी, विवियन डेरोजियो, ज्योतिबा फूले जी, नए नाम भी बताओ, सब रिपीट कर रहे हैं सेम नेम, केशव चंद्र सेन, और नए नए नाम बताइए। सी रत्ना प्रिया जी, रत्ना प्रिया ने भी बहुत अच्छा से किया है यहाँ पे, सी दिस इज रियली गुड। मेजर प्लेट्स आप ना बहुत अच्छा लिख रहे हो, इसको हमें कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है एंड एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे स्पाइरल भी कर रखा है ना, इससे रिवीजन बहुत अच्छा होगा आपका, वेरी नाइस। मेजर प्लेट, देन दिस इज प्लेट बाउंड, इसको और एक्सटेंसिव करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट टेक्टोनिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन सोशल रिफॉर्मर, राजा राम मोहन रॉय जी, देन विवेकानंद जी, देन ज्योतिबा फूले जी, सोशल रिफॉर्म एंड ईश्वर चंद्र गोपाल हरि देशमुख, लोक हितवादी, वेरी गुड। नंदिनी, दिस इज गुड, नंदिनी ने भी पॉइंट्स बताए हैं। देन सी जाम्बेकर जी, वेरी गुड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, सरस्वती जी, राजा राम मोहन रॉय जी, वेरी गुड वेरी गुड। एक आध नाम ना ऐसा थोड़ा यूनिक सा भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हमारा सारा थोड़ा एक लीक से हटके भी कुछ एक आध नाम हमें पता होना चाहिए, जो नॉट दैट पॉपुलर है, बट उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। शुभांगी, दिस इज गुड, प्लेट टेक, देखो मैप वर्क कितना ब्यूटीफुल है, दिस इज रियली गुड, मेंस आपका स्ट्रेंथ है, मेंस आप बहुत अच्छा करोगे, सी दिस इज गुड, वेरी नाइस। देन आपने नाम बताए 1 2 3, रानडे जी के बारे में बताया, सी दिस इज रियली गुड, माधव राव रानडे जी, देन ज्योतिराव फूले जी, अंबेडकर साहब के बारे में बताया, वंडरफुल। सत्या, अब देखो सत्या का अप्रोच, पहले पूरा एशिया, वन वन कॉन्टिनेंट वन ओशियन बताया अच्छे से, देन उसको ब्रेक किया, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, ये डायग्राम बहुत अच्छा है, वेरी गुड, योर कॉपी इज रियली गुड, ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, वेरी नाइस। नेहा, दिस इज गुड, सी अब देखो फिरोज शाह मेहता जी के बारे में बताया, वेरी गुड। देन इसके अलावा बिस्मिल साहब के बारे में बताया, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस जी, वेरी नाइस। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं है कि यही सही होगा, आप अपना क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, अपना पर्सपेक्टिव भी ला सकते हो। सुनीता, दिस इज रियली गुड, सी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेजर ये है, माइनर ये है, इंपॉर्टेंट प्लेट्स है, दिस एक मैप भी बनाओ, वर्ड मैप भी बनाओ, ये बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, योर डायग्राम वर्क इज गुड, इसको बॉक्स में बंद कर दो। इंडियन प्लेट मूवमेंट, फोर्सेस ऑफ टेक्टोनिक, ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।